I request you. I request Ms. Swati Gupta, Chief Judicial Magistrate Kathua, to honor. We chose the flute, it's the only music that belongs to us. Thank you, sir. Thank you very much. The traditional methods of service of summons and process by process are. Now I request Mr. Sonla to please come on the dais and receive a handset from Honorable Mr. Justice Sanjay Kishan Kaur. I request Mr. Satish Kumar to please receive the handset from Honorable Mr. Justice Pankaj Mehta. I request Ms. Darshana Devi to please receive the handset from Honorable Lieutenant Governor, UT of J&K, Shri Manoj Sinha.
I request Mr. Roshan Lal to please receive the handset from Honorable the Lieutenant Governor, UT of Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra. Thank you, sir. I now very humbly invite Honorable Mr. Justice N. Koteshwar Singh, Chief Justice, High Court of Jammu. CJI Chandrachud, the illustrious father of our present Chief Justice of India, had laid a foundation stone for the same High Court, but for the Kashmir wing in Srinagar on 31st of March 1978. It is indeed a matter of pride for us that this High Court has the unique distinction in this country of being blessed by two Chief Justices belonging to the same lineage on such momentous occasions. We are indeed grateful and thankful to His Lordship the Chief Justice for having readily agreed to grace this ceremony by sparing his valuable time from his busy schedule, and we look forward to your guidance in meeting the challenges ahead, and also by utilizing the opportunities which will come in the way. Indian judiciary, post-independence, has a vibrant history with rich tradition and robust foundation which has been dispensing justice across the country, teeming with 13 billion population. The task of dispensing justice is monumental, requiring a large number of judges. There are about 814 judges, High Court judges in 25 High Courts in this country, and about 22,677 judges in 688 district courts spread over the country. I am citing these numbers just to draw attention to the fact that there is corresponding need for adequate and sufficient infrastructural facilities for the courts. Apart from the requirement of adequate courtrooms, we have to have space for the registry, the court staff, the burgeoning number of lawyers. There is a need for additional secured spaces for the massive digitization process which is going on. For all these increasing requirements for more space and better facilities, the need for new High Court complexes have been felt all over the country. Jammu and Kashmir and High Court and the Ladakh High Court has two wings, the Jammu wing and the Kashmir wing, each wing looking after the judicial needs of two divisions, and also Ladakh UT. Though we have 16 judges out of total sanctioned strength of 17, Jammu wing is looked after by 8 to 9 judges at any point of time, but we have only 7 courtrooms and about 2,000 lawyers practicing, which the present High Court building can hardly accommodate. Thus, there is acute need for the courtrooms and the registry and the lawyers. It is for similar reasons that a new High Court complex in Srinagar had started construction 1 year ago on 14th of May 2022. Last month on 24th of May, the Honorable Chief Justice had witnessed the inauguration of a new court complex in Jharkhand High Court, which is built on 73 acres of land with total campus size of 167 acres. Thus, the construction of new court complexes are given utmost importance all over the country. The government has allotted this land, the piece of land measuring 813 canals and 19 marlas, about 101.75 acres in 2019 on the foothills. The wildlife and forest clearance were given in 2020 after the National Green Tribunal did not find any irregularity in the process of conversion of forest land to the official use. And the Honorable Supreme Court had been pleased not to interfere with the order of the National Green Tribunal. And accordingly, possession had been handed over to the High Court in December 2020. In which process was made possible because the untiring efforts of Dean and Chief Justice of this High Court, Honorable Justice Geeta Mittal, who has gladly accepted our invitation and is present today amongst us. Thank you, Madam Justice Geeta Mittal. In order to offset the loss of trees because of the upcoming constructions, the High Court has transferred 18.40 crores to the Jammu Forest Division in 2020 for afforestation in suitable government land.
With today's ceremony, we will be able to see the light of a new building coming up with modern and state-of-the-art amenities. If we have a district complex in the vicinity of the High Court, which appears to be desire of the members of the bar, that will obviously enhance the efficacy of the justice delivery system, and I would request Honorable Union Law Minister and as well as Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir to consider this aspect of allotment of suitable place for district court complex nearby. Today we have reached an important milestone in our continuous endeavor to improve the digitization process of the courts to make justice delivery system more transparent and accountable and to facilitate access to justice, which process has been spearheaded by the E-Committee of the Supreme Court with the Honorable Chief Justice himself in charge, guiding and encouraging us constantly through his visionary and innovative ideas. Today, the document management system DMS has been launched by the Honorable Chief Justice, which will provide the judges not only the court files and records in digital form, but also enable the judges to have access from anywhere through internet. This system has been evolved by having a live connection with the CIS system already in existence, thus enhancing reliability and authenticity of the judicial data. Today, there are very few high courts in India where judges are provided only with digital files at home and in the courtroom, which process was initiated in 2017 as I've informed under the Chief Justiceship of Justice Badr Durraiz Ahmed. In that regard, I can say without any hesitation that the High Court of Jammu and Kashmir is ahead of many of the high courts in this regard. DMS will make the digital ecosystem more efficient and convenient. The National Service and Tracking of Electronic Process, NSTEP, is another innovative digital platform as part of the e-courts project for greater transparency and speedy delivery of processes. It will provide a real-time status update of service of summons beside tracking of geographical coordinates of the process server at the time of serving. It has currently been implemented in 28 states and UTs. Legal proceeding effectively starts only after service of notice or summons on the opposite party, which used to be done through physical papers, which was cumbersome and time-consuming, which can now be expedited with the electronic mode of service through mobile phones. Today we have seen the Honorable Chief Justice formally handing over these mobile phones to process service. I am indeed grateful to Honorable Justice Kishan Kaul, Judge Supreme Court of India, native of Kashmir, whose heart is inseparably entwined with his ancient place, for his presence and blessing on this occasion of the infrastructural development project which have been undertaken, and for his sagacious guidance and the encouragements for the betterment of the judiciary, particularly in Jammu and Kashmir. Thank you, Lordship, for sparing your valuable time, and in spite of a heavy schedule and preoccupations with the upcoming National Conference of the NALSA in Srinagar on 30th June and 1st July. I am also thankful to Justice Pankaj Mittal, Judge Supreme Court of India, for his presence and blessings, who had led this High Court as a Chief Justice, and for sparing his valuable time to attend this function. The Honorable Union Minister of Law and Justice, Sri Arjun Ram Meghwal ji, had very kindly and promptly responded to our request to grace this occasion, but to certain reasons, the Honorable Minister is not able to join us physically, but he is present virtually, which reflects his keen interest and a commitment for the development of judiciary in the UT. The central government certainly has a large role to play and responsibility for providing robust judicial infrastructure across the country. I would appeal to the Honorable Minister to augment and increase the budgetary allocation in the CSS for the UTs of Jammu and Kashmir as well as for the UT of Ladakh, so that not only the High Court complex, but many of the upcoming court complexes in the districts can be expedited and thus continue to support strengthening of the judicial infrastructure. Thank you, sir, for attending this function. भारत के मुख्य न्यायाधीश के कर कमलों से संपन्न हुआ।
एक आधुनिक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मैं समझता हूं कि आज के दिन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हम आगे बढ़ा सके। लोग कह रहे थे कि भवन बहुत आधुनिक है, ढेर सारी खूबियां उसकी बताई गई, लेकिन ये 1800 करोड़ रुपए का बोझ भी जम्मू कश्मीर पर पड़ा है। जो श्रीनगर जम्मू तो मैं सोच रहा था कि अगर हर साल 500 करोड़ रुपए मैं प्रबंध करूंगा तो ये फिर 3 साल में इसका उद्घाटन हो पाएगा। लेकिन ये आवश्यकता थी और ये जरूरत थी, लंबे समय से महसूस की जा रही थी। और मैं आभारी हूं भारत सरकार का, क्योंकि जब मुझे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि एकदम होना ही है, तो हमारी सीमा आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर बहुत छोटी सी यूटी है, संघराज्य क्षेत्र है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि हमारे लिए मुश्किल काम है। लेकिन मैं आभारी हूं भारत सरकार का। जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको हाँ करिए और जो भी धन आवश्यक होगा वो उपलब्ध कराया जाएगा। आज के इस ऐतिहासिक दिन में मैं समझता हूं कि सबके लिए खुशी का विषय है। संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अत्याधुनिक, सहज एवं सरल बनाने के जो प्रयास हुए हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। एक घटना मुझे याद आती है। मैं 7 अगस्त 2020 को आया था। 28 अक्टूबर को अंतिम शुक्रवार था। उस समय जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा साहब आज दरबार मूव हो रहा है, श्रीनगर से जम्मू जा रहा है, आपको वहां मौजूद रहना पड़ेगा। तो मैं गया, वहां देखा तो मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल रख करके श्रीनगर से जम्मू आ रही थी। मैंने पूछा क्या है? कहा दरबार मूव हो रहा है। मैंने एक अच्छा दरबार है जो ट्रक में मूव होता है। फिर उन्होंने तय किया कि अगली बार जब जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो कोई ट्रक वापस नहीं जाएगी। और मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर प्रशासन का हर कार्यालय पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर आधारित है और देश में सबसे ज्यादा ई सर्विसेज आज जम्मू कश्मीर प्रशासन में ही जनता के लिए उपलब्ध है। ई गवर्नेंस में यूटी श्रेणी में हम प्रथम है और इस सभागार में मैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के समक्ष ये बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष जब भारतवर्ष में रैंकिंग होगी तो जरूर हम नंबर 1 होंगे। ऐसी कोशिश हम सब कर रहे हैं। न्याय तंत्र में भी टेक्नोलॉजी की सहूलियत से मैं समझता हूं कि जनता को ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी और भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो इसके लिए प्रयत्न किया है, मैं समझता हूं कि ये देश उनका कृतज्ञ रहेगा। ई कोर्ट सर्विसेज को प्रतिदिन मिल रहे लाखों हिट्स, नागरिक केंद्रित प्रयास और ईज ऑफ जस्टिस एवं डिजिटल सशक्तिकरण ये स्वाभाविक रूप से बस दिखाई पड़ रहा है। यह प्रयास इस बात का भी उदाहरण है कि टेक्नोलॉजी अपनी क्षमता, संसाधन और ऊर्जा का उपयोग करके एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार कर सकती है और लोगों के जीवन में सहजता और सुगमता ला सकती है। हमारी नीतियों और उनके कार्यान्वयन का भार देश की संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मिले जुले संतुलन से जुड़ा हुआ है। देश के नीति निर्माताओं ने संविधान के द्वारा समाज के सभी वर्गों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की और यह सुनिश्चित किया कि सभी संस्थाएं आम नागरिकों के लिए हितकारी हों तथा विविधता में एकता को हम सब कायम रख सकें। इन 75 सालों की यात्रा में देश ने सकारात्मक उन्नति की है। सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं ने मूल्यों को
अक्षुण्ण बना रखते हुए आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता भर प्रयास किया है। ये कहना मुनासिब होगा कि संविधान की छत्रछाया में, संविधान के निर्देशन में, जन जन की सामूहिक ताकत ने विकास का एक लंबा रास्ता तय किया है तथा हर भारतीय की राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रतिबद्धता ने आज भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित किया है। मिश्रा जी ठीक कह रहे थे, अनंत काल से ही हमारे देश ने मानवता का मार्गदर्शन किया है और आज एक बार फिर पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। अनेक विषयों पर आप देख रहे हैं, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। लोग आज उम्मीद कर रहे हैं कि भारत अपनी भूमिका निभाएगा। मैं मानता हूं हमारे संविधान में निहित मानवीय गरिमा, सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक न्याय के मानवतावादी मूल्यों द्वारा ही शांतिपूर्ण वैश्विक समाज की प्रगति संभव है। हमारी संस्कृति सामाजिक समता पर बल देते हुए कहा गया हमारे यहाँ, आत्मो पम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। समस्त प्राणियों को समान भाव से देखने के जीवन मूल्य एवं आदर्श अनेक वर्षों की सामाजिक आर्थिक स्वावलंबन की यात्रा के आधार रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से देश की जनशक्ति ने तीव्र गति से देश को आगे बढ़ाया है, हमारे देश को मजबूती प्रदान की। सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर भी यही लिखा है, यथो धर्म तस्थो जय। जहाँ धर्म है, जहाँ सही व्यवस्था है, वहीं विजय है, वहीं जय है। देश के नीति निर्माताओं में श्री हरि विष्णु कामत का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। 24 मई 1949 को संविधान सभा में न्यायपालिका पर हो रही बहस में उन्होंने कहा था कि आज जिन अधिकारों को नागरिकों को दिया जा रहा है उनका रक्षण तथा संरक्षण करके न्यायपालिका संविधान की पवित्रता को सुनिश्चित करेगी। हमारे पूर्वजों की जागृति एवं सामाजिक चेतना की चरम अवस्था का इसे जीवन उदाहरण ही माना जा सकता है। इसी आदर्श के आधार पर देश की विकास यात्रा में न्यायपालिका ने संवैधानिक व्यवस्था को संरक्षित रखा है और जनतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हुए अपने दायित्वों का भी निर्वहन किया है। मैं समझता हूं कि मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का और आप सबका भी कि आप सब इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इतनी बात करके मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Architect Mr. Chauhan, ladies and gentlemen, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं तो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और एक मौका दिया इस शहर में दोबारा आने का। मेरा बचपन से इस शहर से संबंध रहा है। वो ये कि पहले दिल्ली से कश्मीर जाने में रास्ता रोड से ही चलता था, तो जम्मू में हमेशा मेरे परिवार का घर होने के कारण कुछ दिन जम्मू बिताते थे। अब 1984 के बाद हालात कुछ फर्क हो गए, इसलिए जम्मू में आना था रहा नहीं, तो ये आने का मौका मेरे लिए एक बड़ी मान की बात है। अभी स्पीच में कहा गया कि जम्मू कश्मीर इज द क्राउन ऑफ इंडिया। It has a long spiritual history and a history of inclusiveness. It has faced, of course, its own turmoils and faced a difficult period. But the physical crown of India must also have the best of facilities of the crown. And judiciary is one of the three pillars of this democracy. And therefore, it is necessary that
we are able to showcase and have the best of the judicial infrastructure and facilities for this crown of India. It is for a better appreciation of the social scenario of the state that under the leadership of the Chief Justice, we decided to plan the NALSA conference, the annual conference this year in Kashmir for the first time. We have about more than half the Supreme Court judges in Kashmir at the moment. We have more than, I think, almost a little less than 100% judges, Chief Justices there. We have the senior judges of all the high courts there who had the Legal Service Authority and the Legal Services Committee. And the objective is to understand the progress made by the state over a period of time and showcase the state both for its culture as also for its judicial thinking process apart from the infrastructure. It is often said that there should be transparency in the judiciary. And I say, what more transparent method can there be when everything is done under the eyes of the public and the litigant for whom this system is built? No other part of the government system works in an open environment in that sense. Decisions are taken in the rooms of the officers or the concerned people. That's the way that system works. But the judiciary is one institution where everything is held in open court, where the judge sits at court. And therefore that is the transparency. These institutions are meant to work for the people, and that's why at every opportunity I emphasize, would again re-emphasize that the judiciary is visible to the people. Therefore, it's the judiciary's responsibility to make sure that they are present and carrying on the court proceedings for the time period meant for these court proceedings. That's the faith in the judiciary. Any system has to have what can be loosely called the hardware and the software. When you see this building, when you see the infrastructure being provided, the facilities to be provided, that's the hardware of the system. And certainly that hardware has to be the best which is available. The Law Ministry rest assured that there will never be shortage of funds to make sure that whatever the plans be for creation of infrastructure are utilized and funds are made available for them. The software is what the judges do and the legal fraternity of the bar who give assistance to it. And I do believe it is necessary for both the judges and the bar to walk hand in hand to be able to achieve the aspect of justice to the common man. We are talking about technology and facilities, how things can go on faster. How do you expect in this age of technology people to wait for years to get to justice? There's no point in pointing out our difficulties. We have difficulties, of course. But in this day and age of technology, they are not willing to wait. So we have to find some solutions to their problems collectively, for which the bar and the bench must coordinate itself. I do believe with all this technology available, with infrastructure to come up, with judges willing to work and the lawyers willing to provide assistance, the ability of categorizations, of making sure that dead wood is weeded out, must be emphasized over a period of time, so that we come to more realistic figures and we can provide justice in a time-bound frame, which is something which is called for. However humongous the task may be, I do believe small progresses help in this process, and the facilities which are being provided through these and continue to be provided will work towards this objective. My last word only is to appeal to all of you. Make sure the best of infrastructure comes up. Make sure that all of you put in the best effort which is required, and ensure that the people who wait with faith and with commitment towards you to get justice do achieve that justice. Thank you and Jai Hind. Jammu Kashmir
कश्मीर और लद्दाख की खूबसूरती पर बात करते रह सकते हैं, लेकिन यहां के लोगों के प्रति हमारा आदर तभी होगा जब हम एक समाज के रूप में यहां की चुनौतियां और कठिनाइयों को भी समझें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यहां की चुनौतियां और कठिनाइयों को भी हम समझ सकें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की परिस्थिति और चुनौती इस क्षेत्र के अनुसार अपने आप में अलग है और जिनका सामना करने के लिए समर्पण, दृढ़ता और नवीनता की जरूरत है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई बार लोगों तक अन्य न्याय नहीं पहुंच पाता है। कहने का मतलब है कि कई ऐसे क्षेत्र जैसे कि जम्मू से सटे पहाड़ी इलाके, कश्मीर और लद्दाख, जहां पर पहाड़ों के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक आना जाना मुश्किल होता है, ऐसे क्षेत्रों में लोग अपनी समस्याएं न्यायालयों तक मुश्किल से ही ले पाते हैं। कभी कभी इतनी सर्दी होती है कि घर से निकलना भी मुश्किल होता है। यहां तक कि अलग अलग शहरों में मौसम और पहाड़ी रास्तों में आने जाने की कठिनाई भी होती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शहर कम हैं और ग्रामीण इलाके ज्यादा हैं, जो पहाड़ी इलाकों में या जंगलों के बीच हैं, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए न्यायालय तक आना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ जम्मू से सटे पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर और लद्दाख में कई बार भूस्खलन और बर्फबारी की वजह से भी लोग न्यायालय और कानूनी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये सत्य है, असलियत है। सर्दियों में कोर्ट का बंद रहना न्याय प्रणाली को प्रभावित कर देता है। न्यायालयों तक लोगों का न पहुंच पाना समाज में कई मुद्दों को कानून के दायरे से बाहर कर देता है। यह एक चिंता का विषय है। इन्हीं परिस्थितियों में और इन कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जम्मू परिसर का शिलान्यास करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की है कि जम्मू में नया हाईकोर्ट परिसर बनने से लोग यहां आ सकेंगे और न्याय की उम्मीद कर सकेंगे। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जब भी किसी भी राज्य के हाईकोर्ट परिसर में जाता हूं तो मैं यही सोचता हूं, भारत के हाईकोर्ट उच्च न्यायालय लोगों के लिए उनके हक और अधिकारों की रक्षा के लिए आने वाले संवैधानिक कोर्ट हैं, जहां पर लोग सबसे पहले आते हैं। भारत जैसे बड़े देश में सभी के लिए दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट आना आसान बात नहीं है। इसलिए अलग अलग राज्य के हाईकोर्ट एक बहुत जरूरी संस्थान के रूप में काम कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हाईकोर्ट परिसर का होना अपने आप में यह संदेश देता है कि लोगों के लिए भारत की कानूनी संस्थाएं और संवैधानिक कोर्ट कचहरियां खुले हैं और लोग यहां न्याय पाने के लिए आ सकते हैं। यह बात कहते हुए मुझे यह भी जानता हूं कि कई करोड़ लोगों के लिए किसी भी न्यायालय तक आना या न्यायालय तक आने की बात भी सोच पाना नामुमकिन सा है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए न्यायालय के चक्कर लगाना मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अगर आम इंसान रोज कोर्ट के चक्कर लगाने में अपना समय व्यर्थ करे तो वो अपना और अपने परिवार के लिए जीवन चलाने का समय कहां ले आएगा। न्याय प्रणाली से जुड़े हम सभी लोगों को इन सब बातों को समझना होगा और बार बार कई प्रयास करने पड़ेंगे ताकि भारत के आम इंसान तक न्याय व्यवस्था पहुंच सके। टेक्नोलॉजी ऐसे समय में और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए बहुत जरूरी बन गई है। कोरोना महामारी के दौरान हमने कई अपनों को खो दिया,
भारत की जनता के लिए कोरोना महामारी का दौर बहुत ही कठिन समय था। एक जज के रूप में हम लोग अपने मन की भावनाएं व्यक्त नहीं करते, पर मैं ये आज जरूर कहना चाहता हूं कि कोरोना महामारी में भारत की जनता ने मानसिक रूप से जो सहा, मैं उसे समझता हूं। इसी वजह से जब कोरोना के दौरान लॉकडाउन हुआ और कई संस्थान लोगों के लिए बंद हो गए, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि कोरोना महामारी के दौरान भी कैसे लोगों को न्याय प्रणाली तक पहुंचने में कोई मुश्किल ना हो। अगर कोर्ट ही बंद रहेंगे तो लोग न्याय मांगने कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के चेयरमैन के रूप में मेरे लिए यह जरूरी था कि कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोर्ट को चलाया जाए, ताकि लोग ये ना सोचे कि न्याय व्यवस्था बंद हो गई है। पिछले 3 साल में भारत की न्यायपालिका ने टेक्नोलॉजी को अपनाया है। कोरोना महामारी के दौरान जब कोर्ट परिसर बंद हो गए, तब जजों, वकीलों, खासतौर पर वकीलों और खासतौर पर अपने कोर्ट स्टाफ ने बहुत तेजी से और समझदारी से ऑनलाइन कोर्ट चलाने की प्रक्रिया को शुरू किया। और अब जब हम कोरोना की महामारी प्रभाव से बाहर निकल रहे हैं, तो भारत की न्यायपालिका में एक तकनीकी परिवर्तन आ चुका है। एक समय इस बारे में सोचना भी मुश्किल था, पर अब टेक्नोलॉजी के सहारे न्याय प्रणाली को चलाना और न्याय प्रणाली को सुधारना एक आम बात हो गई है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कई योजनाओं का शुरुआत किया है। इनमें से डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और नेशनल सर्विसेज एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस यानी कि एनस्टेप इनिशिएटिव की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इन प्रक्रियाओं में और इन प्रकल्पों के माध्यम से हम न्याय प्रक्रिया में काफी सुधार ला सकेंगे। डीएमएस के जरिए कोर्ट से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज एक केंद्रीय जगह पर व्यवस्थित और सुरक्षित रखे जा सकेंगे, और अगर किसी भी जानकारी या दस्तावेज को निकालना हो तो डीएमएस के जरिए बहुत आसानी से उसे निकाला जा सकेगा। इस व्यवस्था के जरिए कागज का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। इनस्टेप के जरिए नोटिस और समन्स को ट्रैक पर पाना आसान हो जाएगा। कई बार नोटिस और समन्स में देरी होने के कारण भी सुनवाई में देरी हो जाती है। इसमें इनस्टेप के द्वारा सुधार होगा। ये दोनों नई प्रणाली अपने आप में तकनीकी चमत्कार है। साथ ही साथ यह इस बात का भी सबूत है कि हम तकनीक के सहारे अपनी न्याय व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि इन नई सेवाओं के आने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट जनता के लिए और बेहतर बनेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि डीएमएस और एनस्टेप का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी होगा। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम जनता सबसे पहले जिला स्तर पर ही अपने मुकदमा ले जाकर आती है। हमारी यह कोशिश है कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आता हो, चाहे अमीर हो या अमीर ना हो, सबको न्यायालय तक पहुंचना आसान लगेगा। जो भी हम नई पहल कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, चाहे ऑनलाइन सुनवाई हो, इन सब पहलुओं का इस्तेमाल जब जिला न्यायालयों में होगा, तभी हम लोगों को न्याय व्यवस्था में जोड़ने का काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। हम आज नई तकनीकी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा की गई एक पहल का जिक्र करना चाहता हूं। उड़ीसा हाईकोर्ट ने हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी को उपलब्ध कराया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके जरिए कोई भी वकील किसी भी जिले से रहकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाईकोर्ट में अपनी केस की बहस कर सकता है। इसका फायदा यह है कि वकील को हाईकोर्ट जाने आने में जो समय और खर्च लगता है वो भी बच सकता है। जम्मू के पहाड़ी इलाके, कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्र में
जहां के भूगोल की वजह से, कठिन पहाड़ीय रास्तों की वजह से एक जिले से हाईकोर्ट आना मुश्किल होता है, वहां अगर ऐसे कदम उठाए जाएं जो उड़ीसा हाईकोर्ट ने उठाए हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। लोगों के मुकदमे की सुनवाई होना और समय पर उनका केस लगना, यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि कई हाईकोर्ट के सामने आज है। कई बार मामलों में समय पर तारीख नहीं लग पाती। ऐसे मुद्दों में भी तकनीक का इस्तेमाल करके इसे सुधारा जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैं अपना कार्यभार संभालते ही मैंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को तकनीक के जरिए केस लिस्टिंग सुधारने का आदेश दिया है। जुलाई से हमारे सारे नए मुकदमे ऑटोमेटिक लिस्टिंग के जरिए सुनवाई के लिए प्रदान करेंगे, क्योंकि देश की न्याय व्यवस्था के सामने कोई भी केस बड़ा या छोटा नहीं होता। चाहे कितना भी छोटा केस हो, उसमें न्याय देना लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है। फिर चाहे वो बेल का मैटर हो या बिजली चोरी से जुड़ा कोई केस हो या किसी के पेंशन का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को बराबरी से समझा है और उनकी सुनवाई की है। मैं एक और बात पर जोर देना चाहता हूं। कानूनी पेशे में बहुत कम महिलाएं आ पाती हैं। कानूनी पेशे और न्यायपालिका में महिलाओं और वंचित समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना मेरे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि देखा जाता है, दुनिया भर में न्यायपालिका और कानूनी पेशे में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है। भारत में भी यही हाल है। कई हाईकोर्ट में यही समस्या है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी यही देखा गया है। 1928 में जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट की स्थापना के बाद मुश्किल से कोई महिला हाईकोर्ट जज या फिर चीफ जस्टिस बन पाई है। संख्या में देखा जाए तो इस हाईकोर्ट में अभी तक 124 जज में से सिर्फ 2 ही जज महिलाएं थी। तीसरी गीता बहन जो दिल्ली से आई थी। यह एक चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होने के बाद मैंने देखा कि कई महिला लॉयर्स घर बैठे कोर्ट में बहस कर रही हैं। इनके लिए एक आस्था का विषय है। इसलिए मेरा मानना है कि तकनीकी सुविधाओं के द्वारा हम अपनी सामाजिक समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं और कर रहे हैं न्यायपालिका में। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमने नए हाईकोर्ट परिसर की जो नींव रखी है और जो नए इनिशिएटिव शुरू किए हैं, इनका प्रभाव बहुत ही शीघ्र देखने को मिलेगा। इस बात के लिए मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की प्रशंसा करता हूं। जस्टिस कोटेश्वर सिंह उनके सारे साथियों की प्रशंसा करता हूं। उच्च न्यायालय के स्टाफ की प्रशंसा करता हूं। सारे अधिवक्ताओं की प्रशंसा करता हूं और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सारे जुडिशियल ऑफिसर्स की प्रशंसा करता हूं। दे आर आवर फ्रंटलाइन वॉरियर्स और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आगे भी ऐसे कोई कदम लिए जाएंगे। मैं हाईकोर्ट के सभी जजों और हाईकोर्ट से जुड़े सभी स्टाफ मेंबर्स को बधाई देता हूं। यह आपकी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सारे निर्णय लेता है या फिर चीफ जस्टिस की वजह से ही कुछ हो पाया है, पर मेरा मानना है कि बदलाव लाने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है और चीफ जस्टिस भी दूसरों के सहयोग के जरिए ही आगे बढ़ पाता है। अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं that the chief justice is the first amongst equals। आपको लैटिन के शब्दों में रुचि है तो चीफ जस्टिस को प्राइमस इंटर पेयर्स कहते हैं। चीफ जस्टिस तो एक महज एक जज है, पर सबके साथ वो परिवार का हेड माना जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि न्याय व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अगर कोई भी सुझाव हो तो मेरे कार्यालय के दरवाजे देश की जनता के लिए हमेशा खुले हैं। मेरे लिए न्यायपालिका
स्वाभाविक का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जो जन जन तक पहुंच सके और उनको न्याय दे सके। अन्याय को हराना हमारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे और शायद 3 साल के पहले ही नई इमारत का उद्घाटन भी होगा। नमस्कार, जय हिंद। Lordship's vision has laid the foundation for the progressive march of the judiciary